So for create any project in Scratch, open the Google browser. You can use any browser and type here the official website of Scratch. That is, tell me anyone what is scratch.mit.edu. Click on it and click on the start creating button. So yesterday you have created a Scratch program, butterfly viral, and what we will make today, we will create a fish aquarium. Okay, एक फिश एक्वेरियम हम क्रिएट करेंगे. Close these tutorials. So what we add in the stage area, first of all, we delete the sprite and add a new sprite. First of all, we add a new backdrop. So for creating a fish aquarium, we need the underwater. So click on underwater category and choose any underwater backdrop. So click the first. So students, the stage is filled from underwater backdrop. And here we need the some fishes. Okay, so go to the sprite button and go to Scratch library and you can choose the fish. So click on the animals category and select fishes. First of all, that is the crab. It's a fish. Select more fishes in Scratch library and you can download and upload or insert the any sprite. You can download, you can upload. And you also can create using the paint option. If you want to draw, there is the fish, click on it. And if you can see, this is the fish, and then we check the other images, other graphics of this fish, click on costume. So here are some other graphics. So you can duplicate it by click on right click, duplicate. So here is the fish and you can change its appearance. आप इसका चेंज कर देंगे तो ये आपको अलग फिश लगेगी. अगेन डुप्लीकेट ऑफ इट एंड अगेन द चेंज द इमेज. तो आपने 3 फिश, एक फिश से ही आपने 3 फिश ऐड कर ली. यू कैन ऐड लास्ट वन मोर, बट नो, we insert other new fish. Click on this use sprite and type here starfish. You can type also, that is the starfish. ठीक है, so here are some fishes. You can add any more. In costume of starfish there are only 2 costume. ठीक है, माइनर सा डिफरेंस है दोनों स्टारफिश में. Click on other, type a shark. Yes, shark. So students, there are 6 fishes in this aquarium. So now our sprites or backdrop are completed. Now what we will do? We will code for these sprites. Okay. So for sprite, students, you have to first of all click on event and select when green flag is clicked. First of all, you have to choose
द फिश इज सेलेक्टेड, सो ये जो कोड हम कर रहे हैं वो इस फिश के लिए कर रहे हैं जो सेकंड नंबर पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। when and now click on motion globe, so we want to move it, so when we click it moves on 10 step। ओके, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो 10 स्टेप मूव करेगी, और जैसे ये इस पेज को टच करती है उसके बाद भी क्या करती है कि नेक्स्ट स्टेप को मूव करती रहती है, नेक्स्ट, और ये यहाँ आकर इसको इसने एंड कर लिया, यहाँ तक आपको स्टेजेस के बाद आगे से ये मूव नहीं करेगी। बट आई विश ये जो फिश है ये वापस से बैक हो जाए जैसे ही एज को टच करे और इस तरफ को वापस से मूव करना स्टार्ट कर दे, कि लेफ्ट से साइड और राइट, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, ये मूव करती रहेगी। तो इसके लिए हमारे पास मोशन ब्लॉक में एक ऑप्शन है, दैट इज इफ ऑन एज, कि जैसे ही एज पर पहुंचती है दैट बाउंस, कि वो वापस से बाउंस करे। तो हेयर इज दिस ऑप्शन इफ ऑन एज बाउंस, तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया ये नेक्स्ट स्टेप करके देखो इसने बाउंस कर दिया, बट इसका जो रोटेशन है, इसका जो रोटेशन है वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया। जैसे इसने बाउंस किया तो ये जो है टॉप से बॉटम की तरफ इसने रोटेट कर लिया। तो इस फॉर दिस देयर इज वन मोर ऑप्शन, दैट इज सेट रोटेशन स्टाइल। So when we set in code and click on it, so it's come on its back position, जो इसकी पहली पोजीशन थी इनिशियल पोजीशन पर इसने बैक कर लिया। Now when we click on this, if it touch on is it can bounce। तो स्टूडेंट सेम कोड जो कोड हमने इस फिश के लिए किया है बाकी फिशेस के लिए भी हमें सेम कोड करना है। ओके, बट अगर हम सेम कोड करेंगे तो ये सेम ही मूव करेंगी, तो उसके लिए हमें इसमें क्या करना होगा कि हमें इसमें कंट्रोल का भी यूज करना होगा। कंट्रोल बटन से क्या करेंगे कि इनकी जो मूविंग की जो स्टेप्स हैं उसको हम थोड़ा कंट्रोल करेंगे कि ये केवल एक ही सीक्वेंस में ना जाए। ठीक है, तो ये जो तीनों फिश है इन तीनों फिश का कोड हम सेम रखेंगे, और ये स्टार फिश और क्रैब और जो ये शार्क है इनका कोड हम सेम सेम करेंगे। तो जैसे हमने इसका कोड कर लिया, ये कौन, सो दिस इज द, बट हमको क्या करना पड़ रहा है, बार बार क्लिक करना पड़ रहा है, तो हमें क्या कौन सा ऑप्शन यूज करना है कि हमें बार बार इसमें क्लिक ना करना पड़े। तो कैन एनीवन टेल, क्या करेंगे कोई बता सकता है? अगर मेरे को इसमें बार बार क्लिक नहीं करना है, ग्रीन फ्लैग पर क्लिक नहीं करना है, तो चाहती हूँ कि मैंने एक बार ग्रीन फ्लैग पर क्लिक कर दिया और ये जो फिश है जिसको मैंने कोड किया है ये कंटिन्यू मूव करती रही एक्वेरियम में। तो उसके लिए हमें कंट्रोल ब्लॉक में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे एक फॉर एवर लूप है, तो जैसे ही मैंने फॉर एवर लूप पर क्लिक किया एंड व्हेन वी क्लिक ऑन इट, तो यू कैन सी द फिश इज मूविंग वेरी फास्ट विदाउट क्लिकिंग टिल व्हेन वी स्टॉप, जब तक इसको स्टॉप नहीं करेंगे ये ऐसे मूव करती रहेगी। ठीक है, बट इट्स मूव वेरी फास्ट, सो वी नीड अ वेट ब्लॉक एंड नाउ व्हेन वी क्लिक it move after 1 second, so you can change the time। now fine, ओके, इतना कोड समझ में आ गया। अब सेम कोड हमें अदर फिश के लिए करना है, तो देखो इसमें जब हम ऑनलाइन यूज करते हैं तो ऑनलाइन यूज करने की ये फायदे होते हैं कि एक तो हम इसमें बैक पैक कर सकते हैं, एक बैक पैक का ऑप्शन आता है, उससे क्या होगा कि हम ये जो हमारा कोड है इसको हम यहाँ पर बैक पैक कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये नीचे तक शो नहीं कर रही है। बैकपैक का एक ऑप्शन आता है, उससे क्या होता है कि ये जो हमारा कोड है ये किसी दूसरे स्प्राइट के कोड के लिए इसको हम यूज कर लेते हैं, इसका बैकपैक बना लेते हैं। ठीक है, अभी ये मैंने इसको अकाउंट ऑनलाइन नहीं किया है ना, अकाउंट लॉगिन नहीं किया, जब लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पर एक बैकपैक का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे ही
इस कोड को हम यहाँ बैकपैक में सेव कर देते हैं, और जैसे ही अदर स्प्राइट को हम यहाँ ले आए तो बैकपैक से उठाकर इस कोड को यहाँ सेट कर देते हैं। उससे क्या होगा कि वो कॉपी हो जाता है। बट कॉपी हम अभी कर सकते हैं। आपको कॉपी नहीं करनी है, आपको तो कोड से कोड ही डालनी है। अगर आप कॉपी करेंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो click on this code and hover over the blue piece and check blue piece. Yes, the code is copied. तो अब आप चेक कर सकते हैं कि सेम कोड इधर है और कोड ही आपका ब्लू पिस में है, और इसमें नहीं है, तो इसमें हमें कोड करना होगा। इसमें आप मुझे कोड बताएंगे, ठीक है। अभी मैंने जो कोड किया था सेम कोड मुझे इसके लिए करना है, तो कोई भी एक स्टूडेंट इधर आए सिस्टम के पास और मुझे बताए। कम फास्ट। मैम पहले तो मैम यस मैम यस। पहले मैम पहले इवेंट में First of all, we go in event group and take when green flag is clicked, right? यस मैम Next, मैम मोशन में जाओ मैम yes, motion, go to motion and मूव 10 स्टेप्स move 10 step. Very nice. Next step, scroll down, मैम scroll down the motion code and what we select, इवेंट एज बाउंस icon as bounce. Okay. And go to control and take the which loop? Repeat if then else forever. Wait until which loop? मैम फॉरएवर Forever. Good. And now when we clicked on this face, it move, but it not rotate. So again go to motion below and what select rotation style. Okay. But it move very fast. So how we control its moving, its step, it's move very fast. So tell me which code is used for this. What is your name? What is your name? बेटा अपना नेम मैम बता। यश। ओके, क्लैपिंग फॉर यश। वेरी गुड। ओके, सो नाउ here I use 0.2 and in orange fish the code is 0.5 second and in blue fish same, so change it and 0.8 and also decrease the size as size is very large according to this aquarium, so 50 for blue fish and orange fish for 60 and the in color fish for 60 is sufficient. Okay, now click on full screen and click on the green flag button. So now you can see the fishes are moving. So it's good. Fish are moving in aquarium and looking very nice. The project, but now we will code for these starfish, sharkfish, and the crayfish. So we want the different code for these fish. If I talk about the sharkfish, so again go to the event log, क्योंकि अगर हमने ग्रीन फ्लैग को किसी भी
किसी भी क्या, अगर सभी जितनी भी फिशेज हैं, जितनी भी स्प्राइट्स हैं, बैकड्रॉप हैं, कितना भी हमने इसमें कोड कर लिया, अगर हमने क्लिक ग्रीन फ्लैग ले लिया, तो यहाँ से अगर हम क्लिक करते हैं तो जितनी भी यहाँ पर स्प्राइट्स हैं, जो भी आपके ग्राफिक्स कैरेक्टर इमेजेस हैं, वो एक साथ वर्क करेंगे। ओके, इसलिए ग्रीन फ्लैग का यूज किया है। देन इसको पोजीशन इसकी सेट करनी है, तो कोई भी एक पोजीशन आप इसकी सेट कर सकते हैं जहां से ये स्टार्ट करे। ठीक है, सपोज मैंने इसकी पोजीशन यहाँ पर मैंने इसकी सेट कर दी, तो एक्स और वाई एक्सिस मैंने चेक कर ली, तो हमें यही एक्सिस और वाई एक्सिस को सेट करना है। नाउ आई वांट इट सम glide, so for gliding here, and now x or y axis same, so use the glide option. Okay, and now we want its turn on degree, so take the degree option, turn on 50 degree, and if I want click this code, glide and turn the 15 degree, so you can change the 80. Okay, you can change the 80, and when I click on this code, yes, again same option, same 80. ओके, अब इसकी जो पोजीशन है वो हमें सेट करनी है, क्योंकि जैसे ये डिग्री टर्न कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि ये अपनी जो इसकी इनिशियल पोजीशन है उसमें नहीं आती, तो इनिशियल पोजीशन आने के लिए इसको पॉइंटिंग डायरेक्शन हमें करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो ये पॉइंटिंग डायरेक्शन 90 डिग्री जो इसकी इनिशियल पोजीशन है उसमें आ जाएगी। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, चाहे कितना भी टर्न कर ले, वापस से अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगी। यहाँ तक इसको टर्न करा दिया हमने। टर्न करने के बाद इसने एक सर्कल सा क्रिएट कर दिया। उसके बाद आई वांट ये वापस से ग्लाइड करे और ये यहाँ तक चले जाए। तो पहले हमें इसको चेक करना होगा यहाँ तक रखने के लिए कि कितना एक्स और वाई एक्सिस है, और उसके बाद से ये ग्लाइड वाला ऑप्शन यूज करेंगे, एंड देन वी वांट इट टू मूव 10 स्टेप्स। आप स्टेप्स को बढ़ा सकते हैं, and same, if on is bounce, it rotate, and now click on this code, it's glide. ओके, तो ये रोटेशन वाला जो स्टाइल हमने यहाँ पे रखा है, हमें इसको यहाँ रखना, एंड देन सेट इट फॉर एवर। जो एज और बाउंस करने वाला है उसको मूविंग हमने इसकी कंप्लीट रखी है। और नाउ अगेन क्लिक, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से वापस, देन रोटेट। So tell me, it's good for shark, and here is we can use the same looks option and use its other costume. When we check, here are 3 costume of shark. तो shark जो होती है एक बिग फिश होती है, और क्या करती है कि वो अदर फिश को भी खाती रहती है। तो अगर देखिए इसके अदर कॉस्ट्यूम को यूज करें हम, क्लिक ऑन द लुक्स बटन and use the next costume and set in forever option, but it change its costume very fast, so control it by the weight block and use timing is 0.2. Now it's good. Check students, it's tell me what ये जो शार्क के लिए कोड है, इट्स गुड, यू कैन चेंज एनी। और सेम अगर स्टूडेंट्स आपकी इमेजिनेशन में कुछ और डिफरेंट, कुछ आपको लगता है कि हम इसमें कुछ और डिफरेंट कर सकते हैं और ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं, तो यू आर फ्री टू कोड। ओके, आप अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग आप कोड को चेंज कर सकते हो, बिकॉज देयर आर मेनी कोड्स।
सेम ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक बार ही कर लिया और उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपके पास केवल लिमिटेशन कोड है कि नहीं आपको सिर्फ यही करना है, नहीं, आप अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है क्रैब की। अगर हमें क्रैब में कोड करना है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्रैब का हम कलर चेंज कर सकते हैं, सॉरी स्टारफिश, स्टारफिश में हम कलर का ऑप्शन लगा सकते हैं, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का ऑप्शन लगा सकते हैं। और इसको हम ये नहीं कि ऐसे ही लेफ्ट और राइट रोटेट करें, इसको हम ग्लाइड करा सकते हैं रेंडमली। तो इसके लिए कैसे कोड करेंगे, गो टू इवेंट, टेक द व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, go to motion and glide the random position. Okay, and go to looks and change the color option. और आप इसमें अदर ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फिशी का ऑप्शन है, अगर आपने इसको क्लिक किया तो यू कैन चेक। एक बार फिशी को ही बार बार करके देखते हैं, ये देखिए। ठीक है, here are other graphics, clear this graphic effect. Here are other graphic, here pixelate, mosaic, brightness, host. Click on pixelate. ठीक है, केवल पिक्सेल्स आपको नजर आएंगे फिर। तो क्लियर द ग्राफिक इफेक्ट्स एंड यूज ओनली कलर। Okay, and click on the control block and use the forever option, because सभी के लिए हमने forever यूज किया है, तो इसमें भी सेम forever का ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि एक्यूरेम है और एक्यूरेम सभी पीस के लिए क्या होता है कि उसमें स्पेस होता है मूव करने के लिए, बट मूव कैसे करना है वो ये अपने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें कंट्रोल को करने की भी नीड नहीं है, इसका टाइम भी ठीक है, अगर आपको फास्ट लगता है तो आप इसमें टाइम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं वेट ब्लॉक के थ्रू। नाउ ओनली क्रैब इज रिमेनिंग, सो क्रैब के लिए भी हम कोड करते हैं, और अगर मैं क्रैब के लिए कोड करूं यहाँ पर, दैट इज इन लुक्स चेंज साइज। ठीक है, सबसे पहले हमें इसका साइज सेट करना है कि साइज हमें कितना रखना है, और उसके बाद ये अपना साइज जो है वो डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। चेंज साइज बाय 10 एंड अगेन यूज दिस कोड, चेंज साइज बाय -10। ओके, एंड टेक ग्रीन, व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक सेट साइज, जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो ये अपने साइज से स्टार्ट होगा, ये इसका 50 साइज है, उसके बाद ये इंक्रीज करता जाएगा और फिर ये अपना साइज जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, और जैसे ये साइज डिक्रीज और इंक्रीज करेगा इसको कंट्रोल करना है हमें। तो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हम इसको फॉरएवर कंडीशन में ही रखते हैं, और अगर एक साथ क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, साइज चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि फॉरएवर में दोनों एक साथ हो गए। तो इनके बीच में हमें एक वेट यूज करना है, वेट ब्लॉक, व्हेन वी क्लिक ऑन इट। ओके, वेट करते हैं इसका हम, बहुत ही फास्टली कर रहा है ये, और 0.5 इज गुड। तो स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट कोड क्या है इसमें हमने, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट कोड क्या है, आप देख सकते हैं इस तरीके से कि जो ग्रैब है, और आप इसमें चाहें तो ये इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से यूज कर सकते हैं इसी को, सेम साइज, चेंज साइज। अब ये 2 टाइम ही कम होगा और 2 टाइम ही ज्यादा होएगा।
Now click on stop button and blue fish is moving very slowly. So change its timing. So point 3 is fine. So student, these are the codes for all fishes. You can use your code. Okay, only 10 minutes is remaining for ending the meeting. So if you have any doubt, any query about these projects, you can ask. ये कोई डाउट है? बताइए बेटा, किसी को कोई भी डाउट है तो आप क्लियरली पूछ सकते हैं, नो इशू। और आपका जो होमवर्क है वो यही है कि आपको आज ये जो मैंने क्रिएट किया है एक्वेरियम और फिशेस जो इंसर्ट की हैं और जो जिस तरीके से मैंने कोड कराया है डिफरेंट कोड इन ईच फिश, सो यू कैन यूज। और आप चाहें तो इसमें और भी जैसे कि टोरटोइज है, जैसे फ्रॉग है, इस तरीके के आपको अगर बाकी के भी इंसेक्ट्स वगैरह ये आपको ऐड करने हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। ओके, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं आपके, इनको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और आप इनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये फिश जो है वो बॉटम की तरफ है, तो आप चाहें तो इन्हें आप ये आप सेट कर सकते हैं इनकी पोजीशन की इनको कहाँ से स्टार्ट करना है सेट पोजीशन करने के लिए। यस, आस्क बेटा। मैम जैसे अगर हमारी कोई फाइल सेव करनी है तो उसे कैसे करेंगे? देखो, अगर आपने बनाई है अपनी फाइल, आपने लॉगिन करके, अगर आप अकाउंट में बना रहे हैं, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर साइन इन किया हुआ है तब आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो वो आपके ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। बट अगर आप उसमें साइन इन नहीं किया हुआ तो हेयर इज द ऑप्शन इन फाइल टैब, यू कैन click on the file tab and here is the option save to your computer. So if we click on this button, a dialog box is open and it's download. So here is the download sign, here is the project is downloaded. ठीक है, बट इसको आपको ओपन करने के लिए क्या करना होगा, ये डाउनलोड तो होगी मीन्स आपको स्क्रैच को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा, तभी ये जो आपकी फाइल है ये आपके कंप्यूटर में आपका सॉफ्टवेयर होगा स्क्रैच का, तभी तो ओपन होगी जो भी इसकी एप्लीकेशन होगी। बट ऑनलाइन आप कोई अगर यूज करना है तो आपको अकाउंट लॉगिन करना होगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको लॉगिन करना सिखाया था कि आप सभी लॉगिन कर लें और आपकी जितनी भी फाइल है वो ऑनलाइन सेव होती रहे। ठीक है, बट अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं सिस्टम में तो सिस्टम में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको फाइल टैब में 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज न्यू, फॉर क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, आपको न्यू पेज लेने के लिए। लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, इफ आपके कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट सेव है तो आप उसको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। एंड सेव टू योर कंप्यूटर, अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट अपने कंप्यूटर में सेव करना है। ओके, सपोज जैसे मैंने अभी इसको डाउनलोड कर दिया और अभी मैंने यहाँ पर एक न्यू पेज ले लिया। First of all, it's ask replace content of the current project. Yes, okay. मैंने replace कर दिया new and now I want to open load from your computer. अभी जो मैंने डाउनलोड किया है एक बार चेक कर लेते हैं कि डाउनलोड तो हो गया है, बट दिस इज दैट इज स्क्रैच प्रोजेक्ट। और देखिए ये आपका प्रोजेक्ट जो भी मैंने डाउनलोड किया था ये यहाँ पर आपका ओपन हो गया। ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड करने के बाद इसको ऑनलाइन ही यूज कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम में स्क्रैच इंस्टॉल नहीं है। ओके, एंड एक आपको अभी टाइम है तो एक छोटा सा और बता सकती हूँ मैं आपको चीजें कि जैसे यहाँ पर एक बैकड्रॉप है तो आप एक और बैकड्रॉप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बैकड्रॉप आप यूज कर सकते हैं। अंडर वाटर बैकड्रॉप में जाएंगे, अदर बैकड्रॉप को भी क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया, लेकिन अब ये बैकड्रॉप पर वर्क कैसे करेंगे, या तो ये रहेगा या ये रहेगा। तो हम इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि अगर स्टार फिश या कोई भी एक फिश अगर एज को टच करे तो नेक्स्ट बैकड्रॉप आ जाए।
अब वो कैसे आएगा? ये लॉजिकल है। अब ये आप अपने माइंड से सोचिए, आप पहले खुद से क्रिएट करिए, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो फिर ये मैं कल की क्लास में बताऊं। तो आपका होमवर्क तो यही है, जितना भी मैंने कराया है इतना आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और एक थोड़ा सा एक लॉजिकल थिंकिंग है कि अगर बैकड्रॉप को हमने ऐड तो कर लिया, बट अगर हमें उसे कोडिंग के थ्रू, क्योंकि बैकड्रॉप तो एक ही आएगा, इसके लिए तो हमें कोड करना होगा, इंस्ट्रक्शन देने होंगे कि नेक्स्ट बैकड्रॉप कब डिस्प्ले हो, तो उसके लिए क्या कोड करेंगे वो इन टुमारो क्लास। ठीक है, किसी को डाउट है वो पूछ सकते हैं अभी।